Right. Okay. So the first question states there are similarities between the structure of a typical plant cell and a typical animal cell. The nucleus of plant cells and animal cells contains chromosomes. In interphase of the cell cycle, individual chromosomes are present but cannot be seen. The chromosome material is known as chromatin. Changes occur in interphase which result in a difference between the chromatin in the G1 phase compared with the chromatin in the G2 phase. State and explain the difference in chromatin in the G1 phase compared with the chromatin in G2 phase. Okay, what happens between G1 and G2 phase in interphase? So if we draw the mitotic cell cycle, हमारे पास G1 phase होता है, G2 phase होता है, mitosis होता है, cytokinesis होता है. What is between the G1 and G2 phase? It's the S phase. And what happens in the S phase? DNA replication occurs in the S phase. So because of DNA replication, what happens is सबसे पहले तो हम ये state करेंगे that DNA replication occurs between G1 and G2 phase, known as the S phase. आप add करोगे अगर करना चाहो. Now we have to explain how DNA replication changes the structure of chromosomes. So हमारे पास chromosome क्या होता है? Chromosome is basically a DNA molecule. हमारे पास DNA molecule before the DNA replication consists of a single chromatid. However, after DNA replication, each chromosome consists of two DNA molecules, or you can say it consists of two identical sister chromatids. During, or I can say after DNA replication, after DNA replication, each chromosome consists of two identical DNA molecules known as sister chromatids. Describe the features of a nucleus other than containing chromatin. You may use the space below the lines for a diagram. So आप यहाँ पर एक diagram draw कर सकते हो and it's for 3 marks. ठीक है. So अगर आप बात करें nucleus के features की apart from the presence of chromatin, so हमारे पास क्या कहते हैं? Nucleus में हमारे पास basically न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर एनवेलप होता है. उसमें न्यूक्लियर पोर होता है which allows the entry and exit of substances. So we'll talk about all of that. Nucleus is surrounded by a double membrane known as the nuclear envelope. फिर हमारे पास क्या कहते हैं? पोर्स प्रेजेंट होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियर एनवेलप. सो हमारे पास क्या कहते हैं? There are nuclear pores present to allow the exit of mRNA
फ्रॉम द न्यूक्लियस। फिर हमारे पास क्या चीज प्रेजेंट होती है, हमारे पास न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस is present, which is responsible for the synthesis of ribosomes. So you can either mention three features and draw a diagram, or you can simply describe the features. अगर आप क्या कहते हैं न्यूक्लियस को ड्रॉ करना चाहते हो एज अ डायग्राम, सो आप क्या कहते हैं एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर शो करोगे, उसमें आप ऑब्वियसली न्यूक्लियर पोर्स दिखाओगे। सो आई विल शो द न्यूक्लियर पोर्स, एक सेकेंड। सो बीच में आप क्या कहते हैं पोर्स शो करोगे। Obviously, whenever you're making a diagram, labeling is very important. Obviously, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपके पास क्रोमेटिन आ जाएगा, आपके पास न्यूक्लियोलस आ जाएगा। So this is your, yeah, you can draw a diagram with pencil, but make sure कि आपकी pencil इतनी dark हो कि वो नजर आए अगर scan करें। So this is your nuclear envelope, or you can say the nuclear membrane, दोनों acceptable है। ये आपके पास क्या कहते हैं न्यूक्लियर पोर है। This is your chromatin. No, the drawing of the diagram is not necessary because इन्होंने क्या लिखा है, you may use the space below the lines for a diagram। may लिखा है तो आपके पास choice है। अगर आप diagram draw नहीं कर रहे तो आप 3 marking points लिखोगे। अगर आप डायग्राम ड्रॉ कर रहे हो तो आपके 2 मार्क्स होंगे इसके और 1 मार्क होगा इसके लिए। सो इस तरह से डिविजन होगी। अगर डायग्राम है तो 1 मार्क डायग्राम के लिए और 2 मार्क्स डिस्क्रिप्शन के लिए। और अगर आप डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहे तो फिर आपके जो तीनों मार्क्स हैं वो किसके लिए होंगे, डिस्क्रिप्शन के लिए होंगे। इस तरह से मार्क डिविजन होगी। Starch, cellulose, and pectins are polysaccharides found in plant cells but not in animal cells. Pectins are complex polysaccharides that are found in the cell wall. Describe the structural features of starch that are different from the structural features of cellulose. अब ये क्लासिक एक सीआई स्ट्रैटेजी होती है या टैक्टिक होती है कि वो आपको डिस्क्रिप्शन जो है ना वो अनरिलेटेड कंटेंट की दे देंगे और पार्ट में वो कोई और चीज पूछेंगे, और हो सकता है ये पार्ट या तो किसी, ये इंफॉर्मेशन या तो किसी और पार्ट से रिलेटेड हो या सिर्फ अननेसेसरली आपको कंफ्यूज करने के लिए मौजूद हो। ओके, so describe the structural features of stars that are different from the structural features of cellulose। हम स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पे, अगर आप लोगों ने फंक्शन लिख दिया दैट स्टार्च का जो फंक्शन है इट्स स्टोरेज पॉलीसैकेराइड एंड सेल्यूलोज इज कहते हैं सपोर्ट के लिए, मैकेनिकल सपोर्ट के लिए है, तो ये आपने फंक्शन बताया। फंक्शनल फीचर एज अ डिफरेंस वो नहीं मांग रहा है, वो स्ट्रक्चरल फीचर्स मांग रहा है। सो हमारे पास जो स्टार्च है, स्टार्च के जो मोनोमर्स होते हैं वो अल्फा ग्लूकोज होते हैं, वेयर एज जो आपके सेल्यूलोज होता है उसमें क्या होता है, हमारे बीटा ग्लूकोज होते हैं। सो अल्फा ग्लूकोज मोनोमर्स मेक अप स्टार्च, वेयर एज बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स मेक अप सेल्यूलोज। फिर हमारे पास क्या कहते हैं जो हमारे पास रोटेशन होती है 180 डिग्री रोटेशन होती है in alternate beta glucose monomers making up a cellulose molecule, there is no rotation whatsoever in starch के जो monomers होते हैं, ठीक है। सो हमारे पास alternate beta glucose monomers are rotated by 180 degrees, whereas the alpha glucose monomers are aligned
on the same plane, or you can say orientation. स्टार्च जो है उसमें अमाइलोपेक्टिन और अमाइलोज दोनों प्रेजेंट होता है. सो स्टार्च consists of two types of polysaccharides, which are amylopectin and amylose. Then you can give the description of the structure of amylopectin and amylose, that amylopectin is a branched molecule, whereas amylose is a helical molecule. And हमारे पास compared to a cellulose, cellulose is made up of linear cellulose molecules. So amylose is a helical molecule and amylopectin is a branched molecule, whereas cellulose molecules are linear. अच्छा, यहाँ पर अगर आप बॉन्डिंग की बात करना चाहो, बिकॉज बॉन्डिंग इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चरल फीचर, सो यू कैन से कि हमारे पास जो बॉन्ड्स होते हैं वो हमारे पास अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं अमाइलोज में, और हमारे पास क्या कहते हैं अमाइलोपेक्टिन में वी हैव बोथ अल्फा 1,4 एंड अल्फा 1,6 बॉन्ड्स, whereas हमारे पास जो बीटा ग्लूकोज मोनोमर्स होते हैं उनके दरमियान खाली बीटा 1,4 एंड हाँ बीटा 1,4 मॉलिक्यूल बीटा 1,4 बॉन्ड्स ही प्रेजेंट होते हैं. सो आप बॉन्ड्स के एस्पेक्ट से भी बात कर सकते हो. सो आप अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन के बॉन्ड्स बताओगे और फिर आप बताओगे कि आपके जो सेलुलोज मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बीटा 1,4 ही प्रेजेंट होती हैं. क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस क्वेश्चन? Okay, cell wall pectins can vary in different plant cell types and in different stages of cell development. Pectin molecules are released from cells as basic structures and then modified within the cell wall by adding side chains. RG1 is a pectin molecule with a variable structure. The basic structure is a repeated disaccharide made from two different monosaccharides. RG1 has three different side chains that can be added in different positions. Monoclonal antibodies are used to investigate the structure, location, and role of cell wall pectins, suggest and explain why. Scientists need to use a number of different monoclonal antibodies when investigating a pectin such as RG1. क्यों हमें different antibodies use करनी पड़ती हैं to investigate the structure, location, and role of cell wall pectins? Why do you think is this? That information is present somewhere here. जो मैंने हाईलाइट किया ना उसमें से कहीं पर आपको इसका आंसर मिलेगा. ओके, सो हमारे पास नंबर ऑफ डिफरेंट मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, हर एंटीबॉडी जो है वो क्या कहते हैं यूनिक होती है, हैज अ डिफरेंट बाइंडिंग साइड और एन एंटीजन बाइंडिंग साइड और हैज अ डिफरेंट वेरिएबल रीजन. अच्छा, तो हमारे पास ये एक रीजन हो गया कि हमारे पास एक तरह की बाइंडिंग साइड वाली एंटीबॉडी वुडंट वर्क. यू वुड नीड डिफरेंट टाइप्स ऑफ द monoclonal antibodies with different antigen binding site. Now, tell me, हमारे पास why do different pectin molecules have different structures? क्योंकि different structure होंगे pectin molecule की तभी तभी हमें different monoclonal antibodies चाहिए होंगी ना with different antigen binding sites. What is the factor which is the reason for the pectin molecules to have a different shape? पहले मुझे बता, डिफरेंट शेप होगी डिफरेंट पेक्टिन मॉलिक्यूल्स की तभी हमें डिफरेंट एंटीबॉडीज चाहिए होंगी. डू वी एग्री विद दिस कि पेक्टिन मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट शेप्स होंगी तभी हमें डिफरेंट मॉलिक्यूलर एंटीबॉडीज विद डिफरेंट एंटीजन बाइंडिंग साइट्स चाहिए होंगी? क्यों होंगी वो डिफरेंट पेक्टिन मॉलिक्यूल्स की शेप? दैट इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंट इन द हाइलाइटेड पार्ट. वेरी गुड खदीरा. सो हमारे पास जो ये वाला पार्ट है, RG1 has three different side chains that can be added in different positions.
So because these different genes can be added in different combinations in different ways, that would make the specific structure or the shape of the RG1 molecule to be different. And therefore हमारे पास क्या कहते हैं हमें different monoclonal antibodies चाहिए होंगी उससे bind करने के लिए. ठीक है सब कुछ समझ आया? That because there are different side chains that can be added in different positions, हमारे पास बहुत सारी different possibilities बनेगी. और हर डिफरेंट पॉसिबिलिटी की डिफरेंट शेप होगी तो हर डिफरेंट शेप के लिए अपनी एक यूनिक एंटीबॉडी होगी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी जो उससे बाइंड करेगी एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स दिस ओके सो each or you can say different monoclonal antibodies have different antigen binding sites RG1 molecules would have different shapes from each other because the side chains can be added differently, giving rise to different possibilities of the shape, or you can say structure of RG1 pectin. Make sense? Anybody who's confused? Next question. Cholera, malaria, and tuberculosis are infectious diseases. अच्छा मैं बता देती हूँ marks किस तरह से divided है. Different antibodies have different antigen binding sites. RG1 molecules would have different shapes from each other because the side chains can be added differently, giving different possibilities. That is your third point. या इसको बल्कि अगर थोड़ा सा और elaborate कर दें for clarity हम ये करेंगे different possibilities of the shape or structures of RG1 pectin. Thus, different antibodies would be different RG1 molecules. Okay, so cholera, malaria, and TB are infectious diseases caused by unicellular organisms. For each of the diseases listed, state whether disease is caused by a eukaryotic or prokaryotic organism. So cholera. Cholera is a bacterial infection caused by Vibrio cholerae. The bacteria are prokaryotic. Malaria is caused by Plasmodium. Plasmodium, is it a bacteria or is it not a bacteria? It is eukaryotic. It belongs to the kingdom Protoctist. TB is a bacterial infection caused by Mycobacterium tuberculosis or Mycobacterium bovis, and that makes it prokaryotic. State the term given to an organism that causes diseases such as cholera, malaria, and TB. So basically, any disease-causing organism is known as a pathogen. Malaria is caused by species from the genus Plasmodium. Ring cells are one stage in the complex life cycle of Plasmodium that are found within RBCs. Figure 2.1 is a scanning electron micrograph showing two ring cells surrounded by the membrane of a red blood cell which has just lysed, which means it has bursted.
The actual diameter of the ring cell along the length x to y is 2 micrometer. Calculate the magnification of the image shown in figure 2.1. So for this आप x and y का image size find out करोगे using a ruler. ठीक है, आपका जो image size होगा वो या तो आपके पास सेंटीमीटर में आएगा या मिलीमीटर में आएगा, डिपेंडिंग कि आप जो स्केल यूज कर रहे हो अपने एग्जाम में वो कौन सा होगा. आपके पास अगर सेंटीमीटर में आप वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो सेंटीमीटर को आप किसमें कन्वर्ट करोगे, माइक्रोमीटर में. तो सेंटीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, आप बेसिकली सेंटीमीटर के बाद मिलीमीटर एंड देन वी हैव माइक्रोमीटर. सेंटीमीटर से मिलीमीटर में जाने के लिए टाइम्स 10 होता है, मिलीमीटर से माइक्रोमीटर में जाने के लिए टाइम्स 1000 होता है. आप अगर इसको कन्वर्ट करोगे इन अ माइक्रोमीटर वैल्यू, आप टाइम्स 10 टू द पावर 4 करोगे. और अगर आपने मिलीमीटर में वैल्यू फाइंड आउट की है और आप माइक्रोमीटर में जाना चाहते हो तो आप उस वैल्यू को टाइम्स 1000 करोगे. तो आपने ये कन्वर्जन करनी है. ठीक है, सो यू विल फाइंड आउट द इमेज साइज. आप जब इमेज साइज फाइंड आउट कर लोगे आपके पास उस इमेज साइज को, लेट्स से जो हमारे पास इमेज साइज आना चाहिए वो हमारे पास आना चाहिए 24 मिलीमीटर्स. तो 24 मिलीमीटर्स को आप क्या कहते हैं, कन्वर्ट करोगे into micrometers, which would become 24,000. Magnification is equals to image size upon the actual size. Image size हमारे पास 24,000 था, actual size हमारे पास 2 micrometers था. माइक्रोमीटर माइक्रोमीटर कैंसिल हो जाएंगे, ये 12,000 हो जाएगा. आपके पास टाइम्स 12,000 आपका आंसर आ जाएगा. Whenever you're writing magnification, यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने टाइम्स का साइन दिया हुआ है तो आपने खाली 12,000 लिखना है. अगर ये साइन नहीं होता तो आपने यहाँ पर ये साइन खुद ऐड करना होता है. सो बी वेरी केयरफुल इफ द यूनिट्स और द साइंस आर मेंशन्ड इन द आंसर ब्लैंक और दे आर नॉट मेंशन्ड. क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? Describe how plasmodium is transmitted from a person with malaria into the bloodstream of an uninfected person. ठीक है, हमारे पास क्या कहती हैं, एक पर्सन है और हमारे पास वी हैव टू टेल कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से अनइन्फेक्टेड पर्सन में प्लाज्मोडियम कैसे ट्रांसफर हो रहा है. अगर हम एक्सप्लेन करना चाहें तो हम पूरा मस्कीटो बाइट का प्रोसेस एक्सप्लेन करेंगे कि हमारे पास जो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो है that acts as the vector. ठीक है, तो हमारे पास मस्कीटो वेक्टर होता है. ऑब्वियसली 1 मार्क का नहीं है, 3 मार्क का आंसर, तो हमें elaboratively इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा. We would say that when the female Anopheles mosquito takes the blood meal, the plasmodium enters into the mosquito through the blood of the infected person. And this mosquito, when it would bite an uninfected person, it would basically एंटर और इंजेक्ट इट्स सलाइवा. उस सलाइवा के अंदर क्या चीज प्रेजेंट होती है, आपका प्लाज्मोडियम प्रेजेंट होता है. इस वजह से आपके पास जो अनइन्फेक्टेड पर्सन है उसमें आपका ट्रांसफर हो जाएगा प्लाज्मोडियम. या फिर एक अनइन्फेक्टेड पर्सन में ऐसे भी ट्रांसफर हो सकता है कि एक मलेरिया वाले इंसान का ब्लड अनस्क्रीन तरीके से किसी अनइन्फेक्टेड इंसान के ब्लड में ट्रांसफ्यूज हो जाए. अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन could be one way. ये आपका एक मार्किंग पॉइंट हो जाएगा, अनस्क्रीन ब्लड ट्रांसफ्यूजन फ्रॉम एन इन्फेक्टेड person to an uninfected person. ये आपका एक मार्किंग पॉइंट है. दूसरा हमारे जो 2 मार्किंग पॉइंट्स होंगे वो एक्सप्लेनेशन ऑफ द मस्कीटो वेक्टर मेथड के हो जाएंगे. A female Anopheles mosquito acts as a vector, takes the blood meal from the infected person through which
plasmodium enters the salivary glands. When the same mosquito bites an uninfected person, the plasmodium is transmitted along the saliva into the person's blood. तो ये बेसिकली 4 मार्किंग पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई भी 3 आप लिखोगे आपको आपके मार्क्स मिल जाएंगे. In a person with malaria, phagocytes destroy infected red blood cells. So, अगर आपको मलेरिया है तो आपके जो भी इन्फेक्टेड आरबीसीज हैं जिनमें आपका प्लाज्मोडियम प्रेजेंट है, आपके फेगोसाइट्स उन आरबीसीज को डिस्ट्रॉय कर देंगे. The phagocytes respond to the presence of particular molecules in the outer phospholipid bilayer of the cell surface membrane. So हमारे पास जो भी infected cell की outer phospholipid bilayer है, उस outer phospholipid bilayer of the cell surface membrane में जो भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, उन मॉलिक्यूल्स की वजह से कीमोटैक्सिस करके फेगोसाइट्स आपके इन्फेक्टेड सेल्स की तरफ जाएंगे. The cell surface membrane of healthy uninfected red blood cells shows an uneven distribution of types of phospholipid making up the bilayer membrane asymmetry. For example, most of the phosphatidylserine is located in the inner layer facing the cytoplasm. अब इसका मतलब क्या है? हमारे पास जो एक हेल्दी इंडिविजुअल के आरबीसीज होते हैं, हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, वो फॉस्फोलिपिड्स अनइक्वली या अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं इन द टू लेयर्स मेकिंग अप द बायलेयर. सो जो इनर लेयर होती है उसमें एक सर्टेन मॉलिक्यूल के बारे में वो बता रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड की एक टाइप होती है फॉस्फेटाइडोल्सरीन. वो फॉस्फेटाइडोल्सरीन इनर लेयर में ज्यादा होती है, आउटर लेयर में कम होती है. सो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉस्फोलिपिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होती है एक नॉर्मल सेल में, एक नॉर्मल आरबीसी में. After a red blood cell is infected, a much higher proportion of phosphatidylserine is found in the outer layer of the cell surface membrane facing blood plasma. Suggest how the presence of phosphatidylserine in the outer layer causes a response in a phagocytic cell. Okay, what do you guys think about it? हमारे पास जब तक फॉस्फेटाइडोसिरीन इनर लेयर में थी, यानी कि साइटोप्लाज्म को फेस कर रही थी और ब्लड को फेस नहीं कर रही थी, तब तक हमारे पास एक ट्रिगर नहीं हो रहा था फेगोसाइट्स का इम्यून रिस्पॉन्स. पर जब प्रेजेंस ऑफ फॉस्फेटाइडोसिरीन ज्यादा हो जाती है आउटर लेयर में, तो हमारे पास टाइडोसिरीन इज ट्रिगरिंग द फेगोसिटिक सेल फॉर एन इम्यून रिस्पॉन्स. तो हमारे पास क्या कहते हैं हम? यस, वेरी गुड खतीजा. It is acting as an antigen, and this antigen is basically causing the chemotaxis of the phagocyte, and our phagocyte would basically bind to the antigen or bind to the phosphatidylserine, and that binding would then lead to the endocytosis of the infected cell. Make sense to all of you, Aliza and Sana as well? कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड फॉस्फोटाइडोसरीन आउटर लेयर पे जो ब्लड की तरफ फेस कर रहा है साइड फॉस्फोलिपिड बायलेयर का, उसमें ज्यादा हो जाती है. सो ये केमिकल एक्ट करता है एज अ स्टिम्युलस एंड इट अट्रैक्ट्स द फेगोसाइट. सो PS acts as an antigen which stimulates the chemotaxis of phagocytes
Suggest why some uninfected red blood cells in a person with malaria can also be destroyed by phagocytic cells. तो हमारे पास जो अनइन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स हैं उन अनइन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स में क्यों फेगोसाइट्स जो हैं वो उनको भी इंजेस्ट कर सकते हैं. अच्छा, ईआर में इस पर्टिकुलर पार्ट के लिए लिखा हुआ था दैट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बच्चों ने दो तरह से इंटरप्रेट किया. एक इंटरप्रिटेशन ये थी कि वो एक्सप्लेन करें कि अनइन्फेक्टेड रेड ब्लड सेल्स क्यों डाइजेस्ट हो रहे हैं, डाइजेस्ट नहीं क्यों इंजेस्ट हो रहे हैं या उनका फेगोसाइटोसिस हो रहा है. सो दे बेसिकली सेड कि हमारे पास इट बेसिकली स्टेट्स हमें इंफॉर्मेशन दी है, इस इंफॉर्मेशन में लिखा है कि हमारे पास uneven डिस्ट्रीब्यूशन होती है phospholipid molecules की in the bilayer and most of the phospholipid phosphatidylserine is located in the inner layer. Most लिखा है, all नहीं लिखा. So it is possible that the presence of the phospholipid phosphatidylserine, although the presence is less in the uninfected red blood cells on the outer layer, still it is possible कि उनकी presence जो है वो trigger कर दे एक phagocytic immune response को. एक ये आंसर हो सकता है. दूसरा आंसर ये हो सकता है that why only some red blood cells are being destroyed, some uninfected red blood cells are being destroyed, and why other uninfected red blood cells are not being destroyed. So क्या कहते हैं, we can say that outer layer में सिर्फ कुछ PS molecules होने की वजह से it is possible कि some uninfected red blood cells में let's say 10% phosphatidylserine के molecules थे और एक में 20% थे. 10% एंड 20% कम प्रोपोर्शन है, तो हो सकता है 20% वालों में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर हो गया और 10% वालों में इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर नहीं हुआ. So some uninfected red blood cells with PS on the outer membrane were identified by the phagocytes and the others were not. ठीक है, so इसको दो तरह से बच्चों ने आंसर किया था और दोनों तरह से एग्जामिनर ने एक्सेप्ट किया था इस आंसर को. मेक सेंस? Research has shown that Plasmodium uses cholesterol from the cell surface membrane of the red blood cell it has infected. Suggest why cholesterol is needed by Plasmodium. Acha, what is the purpose of cholesterol in a cell membrane? किसी भी यूकेरियोट की सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल का क्या रोल होता है? What's the function? फ्लूइडिटी. किसकी फ्लूइडिटी? सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी, राइट? अच्छा, हमारे पास क्या कहती हैं, research is showing that Plasmodium is using or taking the cholesterol from the cell surface membrane of red blood cell. तो Plasmodium red blood cell की cell surface membrane से cholesterol लेकर अपने अंदर ले रहा है. Plasmodium क्या है? Plasmodium भी एक यूकेरियोट है और अगर ये यूकेरियोट ना भी होता, प्रोकैरियोट भी होता, तब भी क्या कहता है हमारे पास सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स की भी होती है. बट आप लोगों को याद होगा कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में पाया नहीं जाता, यूकेरियोटिक सेल मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है. नाउ हमारे पास प्लाज्मोडियम कोलेस्ट्रॉल ले रहा है, हमें ये बताना है व्हाई डज प्लाज्मोडियम नीड कोलेस्ट्रॉल. सो सिंपली प्लाज्मोडियम needs cholesterol to regulate its membrane fluidity. The use of cholesterol by Plasmodium causes a decrease in the quantity of cholesterol in the cell surface membrane of the red blood cells. Outline how a decrease in cholesterol could affect the cell surface membrane of the red blood cell. हमारे पास ये कहते हैं रेड ब्लड सेल्स की अगर कोलेस्ट्रॉल डिक्रीज हो जाए तो हमारे पास क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रॉल का क्या काम होता है? कोलेस्ट्रॉल आपकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को इंक्रीज भी कर देता है और कोलेस्ट्रॉल हमारे पास मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को डिक्रीज भी कर सकता है. ठीक है, हमारे पास क्या कहती हैं, अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है, डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल हो रही है इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल, हाउ वुड यू थिंक चेंजेस आएंगे? हाउ वुड यू अप्रोच दिस क्वेश्चन? ओके, द फ्लूइडिटी इज इंक्रीजिंग. ठीक है, क्योंकि होता क्या है, जब हम फ्लूइडिटी की बात करते हैं, फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से मूव अराउंड करता है.
हमारे पास क्या कहते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल है वो किस तरह से आपकी मेम्ब्रेन को मेंटेन रखता है, कि जो आपके फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं उनके दरमियान कोलेस्ट्रॉल मौजूद होता है। फिर लाइक अ बैरियर, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 10 फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, और उन 10 फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में हमारे पास 5 कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स भी हैं। सो अगर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं, तो जितने ज्यादा कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स होंगे उतना मुश्किल होगा मेरे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज करना। इज दैट करेक्ट? डू वी अग्री? ग्रेटर द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, आई रिपीट अगेन। हमारे पास बेसिकली, मैं ड्रॉ करके दिखा देती हूँ, एक सेकेंड, लेट मी ड्रॉ दिस। ये मेरे पास लेट्स से फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बिटवीन द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स। इज दैट करेक्ट? लेट्स से यहाँ पर मेरा ये एक फॉस्फोलिप सॉरी ये कोलेस्ट्रॉल का मॉलिक्यूल है। तो अगर मेरे फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, सो ये जो मूवमेंट है फॉस्फोलिपिड्स की, लेट्स से फॉस्फोलिपिड्स को यहाँ से यहाँ डिफ्यूज करना है, ये डिफ्यूजन या ये मूवमेंट इजी होगी या ये मूवमेंट डिफिकल्ट होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल? या इसको ऐसे इमेजिन करो, एक सीट है और उस सीट में कैपेसिटी है 3 लोगों के बैठने की। उन 3 लोगों के बैठने, अगर 3 लोग ही उस सीट पे बैठेंगे तो आप आराम से बैठ सकते हो और आराम से आप मूव भी कर सकते हो अपनी सिटिंग पोजीशन में। बट अगर मैं 3 लोगों की कैपेसिटी में 4 लोगों को बिठा दूं, तो उनका मूवमेंट, मतलब हाथ हिलाना या पैर हिलाना, मुश्किल होगा या आसान होगा? मुश्किल होगा, राइट? So cholesterol is a molecule. It's a proper molecule which is present between phospholipid molecules. Fluidity क्या होती है? Fluidity is the ease of movement of phospholipids within the monolayer. अगर हमारे पास ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है, तो जो फ्लूइडिटी है, जो मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स विद इन द मोनोलेयर है, वो हमारे पास क्या कहती हैं, इजी होगी मूवमेंट या मुश्किल होगी मूवमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल? So we all agree that more cholesterol difficult for phospholipids to move. Is that correct? सब इस रिलेशनशिप से अग्री करता है? Give me a thumbs up or a yes in the chat box, all three of you. Okay. Difficult for phospholipids to move. Can I say fluidity कम है? हो क्या रहा है? हमारे पास डिक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ कोलेस्ट्रॉल है इन द सेल सरफेस मेम्ब्रेन। ये जो कोलेस्ट्रॉल बीच में था, एक हिंड्रेंस था, ये कोलेस्ट्रॉल कम हो रहा है। नाउ इफ द कोलेस्ट्रॉल is decreasing, there is more space between the phospholipid molecules. If there is more space, it is easier for them to move. आराम से मजे से move कर सकता है। ये रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो रही है। नाउ फ्लूइडिटी ऑफ द फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स बढ़ रही है। अगर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इधर उधर मूव करने लगे, डज दैट मेक द मेम्ब्रेन मोर स्टेबल और लेस स्टेबल? अगर बहुत ज्यादा ही फ्लूइडिटी हो जाए। ओके अलीजा, व्हाट अबाउट सना एंड खतीजा? अगर फ्लूइडिटी यानी कि मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाए, yeah, it regulates membrane fluidity. It regulates membrane fluidity, but it can increase or decrease the fluidity depending on the conditions. So अगर हमारे पास टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर हैज एन इफेक्ट ऑन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी एज वेल। बहुत सारे फैक्टर्स जो होते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी में रोल प्ले कर रहे होते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल जब फैटी एसिड चेन्स के बीच में आ जाता है ना, तो हमारे पास जो पैकिंग होती है वो क्लोज पैकेजिंग हो जाती है।
पैकिंग डेंसिटी बेसिकली बढ़ जाती है एंड मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड हो जाती है इफ द कोलेस्ट्रॉल इज प्रेजेंट बिटवीन देम। मेक सेंस? एंड कोलेस्ट्रॉल आपकी बायलेयर की थिकनेस को भी बढ़ा देता है। बायलेयर की थिकनेस अगर बढ़ जाती है तो एक ओवरऑल ज्यादा स्ट्रेंथ एंड स्टेबिलिटी होती है। सो इट कॉन्फर्स टू फ्लूइडिटी एंड स्टेबिलिटी। हाँ, अगर मेम्ब्रेन बहुत कम फ्लूइड यानी कि बहुत ज्यादा रिजिड हो जाए तो वो भी मसला है। मेम्ब्रेन अगर बहुत ज्यादा फ्लूइड होना भी प्रॉब्लमैटिक है, बहुत कम फ्लूइड होना भी प्रॉब्लमैटिक है। एक बैलेंस्ड अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, तभी हम कोलेस्ट्रॉल की टेस्ट करा रहे होते हैं ना बॉडी में। कोलेस्ट्रॉल एक बैलेंस्ड अमाउंट में होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों के ड्रॉबैक्स हैं। या देयर प्रेजेंस इज इक्वल टू, नहीं, क्या कहती हैं, देयर प्रेजेंस इज इक्वल टू लेस फ्लूइडिटी। यस, यू कैन से दिस। जब वो प्रेजेंट होती हैं तो आपके पास फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। जब वो एब्सेंट होती हैं तो वो जो फ्लूइडिटी है, जो मूवमेंट है, वो इजियर हो जाती है। ठीक है? जितनी ज्यादा फ्लूइडिटी होगी उतनी कम स्टेबिलिटी होगी। दैट इज रिलेशनशिप। ग्रेटर फ्लूइडिटी, लेस स्टेबिलिटी। सही है? However, this is also influenced at different temperature. अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा होता है ना, यहाँ पर टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा। अगर टेम्परेचर चेंज होता तो एट हाई टेम्परेचर कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, दे रिड्यूस मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी। व्हाई? हाई टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। ये ऑल्दो इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। हाई टेम्परेचर है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है मॉलिक्यूल्स की एट हाई टेम्परेचर। डू वी ऑल एग्री विद दिस? सना एंड अलीजा, आर यू गाइस विद मी? नाउ, हमारे पास टेम्परेचर बढ़ा है, काइनेटिक एनर्जी और फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स बढ़ी है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ी है तो फॉस्फोलिपिड ज्यादा मूव करेंगे। दैट्स अ प्रॉब्लम। तो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में इंसर्ट होना शुरू हो जाता है और उनकी मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करता है। ठीक है? लो टेम्परेचर्स पे काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है, जिसका मतलब है मूवमेंट फ्लूइडिटी कम हो गई है। सो वहां पर क्या कहती हैं, बहुत पॉसिबल है कि आपकी मेम्ब्रेन बहुत टाइटली पैक्ड हो जाए, रिजिड हो जाए, क्योंकि फ्लूइडिटी ही कम हो गई है लो काइनेटिक एनर्जी की वजह से। तो वहां पर भी जो कोलेस्ट्रॉल है, वो कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बैलेंस करते हैं। तो कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है कि टेम्परेचर एंड काइनेटिक एनर्जी फ्लक्चुएशन की बेसिस पे वो रेगुलेट करता है मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को। ना बहुत ज्यादा होने देता है, ना बहुत कम होने देता है। लेकिन अगर टेम्परेचर में चेंजेस नहीं आ रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट है और कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, तो फिर हमारे पास हम कहेंगे दैट डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल इज कॉजिंग द फ्लूइडिटी टू इंक्रीज, मेकिंग द मेम्ब्रेन लेस स्टेबल। मेम्ब्रेन अगर हमारे पास क्या कहती हैं लेस स्टेबल हो जाए, तो जो हमारी मेम्ब्रेन का कंट्रोल है, जो वो सेमी परमिएबल नेचर है, जो वो एग्जिट एंड एंट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स कंट्रोल कर रहा होता है, क्या वो कंट्रोल स्ट्रांग होगा या वो कंट्रोल डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। यानी कि हमारे पास द मेम्ब्रेन वुड बिकम मोर परमिएबल, वो प्रॉपरली रेगुलेट नहीं कर रही होगी। परमिएबिलिटी हमारे पास क्या कर जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कोई भी चीज आ रही है, जा रही है, कोई प्रॉपर चेक इन बैलेंस नहीं है। ठीक है? सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस, अ डिक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल would basically make membrane more fluid, decrease membrane stability, and increase overall permeability of the membrane. Make sense? Just a second. Actually. So this was part F of question number 2. To achieve membrane asymmetry, which is an essential feature of a healthy cell, the red blood cell needs a supply of ATP and must maintain a very low concentration of calcium ions within the cytoplasm. Table 2.1 shows details of three membrane enzymes that are involved in the movement of phospholipids between the inner and outer layers. So we have three types of phospholipids: phosphatidylserine, phosphatidyl ethanolamine, and phosphatidyl choline.
So we have an enzyme flippase which hydrolyzes ATP and moves phosphatidylserine and phosphatidylethanolamine from the outer to the inner layer. So हमारे पास let's say ये phospholipid bilayer है, ये हमारे पास outer layer है, ये हमारे पास inner layer है. So basically what this enzyme flippase is doing is that it moves phosphatidylserine and phosphatidylethanolamine from the outer layer to the inner layer. So हमारे पास इस तरह से ये enzyme involved होती है in the movement of phospholipids from the outer to the inner layer. Then we have floppase, which hydrolyzes ATP and moves phosphatidylcholine from the inner to the outer layer. So floppase हमारे पास एक different type के phospholipid molecule को, which is phosphatidylcholine, उसको move करवाती है outer layer, sorry, from the inner layer to the outer layer. And scramblase is an enzyme which, after binding calcium ions, randomly moves PS, PE, and PC between layers. So this is acting as a cofactor because ये cofactor आकर bind करेगा enzyme से, फिर enzyme अपना क्या कहते हैं function carry out करेगी. Random movement है, does not require ATP. So ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास passive transport की example है. Obviously passive transport में हमारे पास diffusion होता है या osmosis होता है. So in this case हमारे पास obviously osmosis तो नहीं हो सकता, so ये हमारे पास diffusion का केस है. और ये दोनों क्योंकि मूवमेंट के लिए एक्टिव क्या कहते हैं एटीपी को यूज कर रहे हैं, तो ये हमारे पास एक्टिव प्रोसेस या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है. A healthy red blood cell has most PS and PE located in the inner layer and most PC located in the outer layer. Phospholipids can occasionally move between layers without the action of an enzyme, so the continued activity of lipase and floppase is needed. With the reference to table 2.1, explain why the action of the enzymes flippase and floppase involves the hydrolysis of ATP. हमारे पास कौन से processes के लिए हमें hydrolysis of ATP चाहिए होता है? Active transport against concentration. तो जो flippase enzyme and floppase enzyme movement करवा रही है of the molecules of the phospholipids, that is against the concentration gradient. It is an active process and thus it requires ATP. Is this clear? Pretty straightforward, I'm assuming. Blood plasma has a higher concentration of calcium ions than the cytoplasm of red blood cells, suggests one way in which a red blood cell can have a very low concentration of calcium ions when blood plasma has a higher concentration of calcium ions. What is it saying? ये हमारे पास red blood cell है. This is a red blood cell. They are saying that red blood cell, the blood plasma, this is the blood plasma. Blood plasma has a high calcium ion concentration compared to the cytoplasm of red blood cell. Suggest one way in which a red blood cell can have a very low concentration of calcium ion when blood plasma has a higher concentration of calcium ion. हमारे पास blood plasma में high calcium ion concentration है और हमारे पास blood plasma में low calcium ion concentration है. Question हमसे ये पूछ रहा है. Suggest one way in which a red blood cell can have a very low concentration of calcium ion when blood plasma has a higher concentration of calcium ions. हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में ज्यादा कैल्शियम आयंस हैं, तो टेक्निकली तो ये होना चाहिए था कि कैल्शियम आयंस आराम से डिफ्यूज करके अंदर आ जाए. तो हमारे पास विद इन द रेड ब्लड सेल हमारे पास क्या कहती हैं लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयंस तो हो ही नहीं सकती. So why is it that the blood plasma, when it has a higher concentration, is unable to move its calcium ions into the red blood cell? That is because the calcium ions are moved via active transport. Very good. So हमारे पास जो calcium ions हैं, they move via the active transport, and the cell surface membrane is not permeable to calcium ions, and therefore हमारे पास क्या कहती हैं within the RBC, calcium ion concentration is less.
सो लो से और लो इसलिए हो रही है क्योंकि ये वाले जो कैल्शियम आयंस हैं, दे आर कंटिन्यूअसली बीइंग pumped outside via active transport. The calcium ions move via active transport outside of the RBC into the blood plasma. Is this clear? Any questions? ओके सो हमारे पास ये कहते हैं जो रेड ब्लड सेल होता है ऑब्वियसली उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, सो उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं होती, बट आरबीसीज में एंड एरोबिक रेस्पिरेशन हो रही होती है. So this is something that I did tell back when I was teaching chapter number 4 कि RBCs में obviously little supply of ATP होती है compared to other cells, क्योंकि RBC में खाली anaerobic respiration होती है mature RBC में because it is devoid of mitochondria. बट जितनी भी एटीपी नीडेड होती है एक मैच्योर आरबीसी को, दैट कम्स फ्रॉम एनारोबिक रेस्पिरेशन बिकॉज ऑब्वियसली देयर इज नो माइटोकॉन्ड्रिया. The concentration of calcium within the red blood cell increases when the cell is infected with the malarial parasite. This leads to the loss of membrane asymmetry. With reference to table 2.1, suggest and explain how membrane asymmetry is lost when the concentration within red blood cell with when the concentration of calcium ions within the red blood cells increases. मेम्ब्रेन एसिमेट्री क्या होती है? मेम्ब्रेन एसिमेट्री उन्होंने हम जब लास्ट क्लास कर रहे थे तो उसमें हमने पढ़ा था that membrane asymmetry is basically the cell surface membrane of a healthy uninfected red blood cell shows an uneven distribution of types of phospholipid making up the bilayer. So uneven distribution जो होती है of different types of phospholipid molecules in the bilayer, उसको हम क्या बुलाते हैं? membrane asymmetry बुलाते हैं. हमारे पास they are saying that looking at table 2.1 tell कि अगर calcium ion concentration बहुत ज्यादा increase हो रहा है, if there is an increase in the calcium ion concentration, why would there be a loss of membrane asymmetry? Now हमारे पास basically what is happening is that इन्होंने बताया था, wait a second. So a healthy red blood cell has most PS and P located in the inner layer. So inner layer में हमारे पास ये ज्यादा होते हैं in the inner layer and outer layer में हमारे पास PC ज्यादा होता है. So हमारे पास इनकी unequal distribution होती है in a normal red blood cell membrane. However, जब हमारे पास एक मलेरियल पैरासाइट आरबीसी को इन्वेड करता है, उसको इन्फेक्ट करता है, तो हमारे पास the concentration of calcium ion increases, causing a loss of membrane asymmetry. With reference to table 2.1, suggest and explain how membrane asymmetry is lost when the concentration of calcium within the red blood cell increases. हमारे पास जब कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास इनिशियली क्या था कि हमारे पास विद इन द आरबीसी लो कॉन्सेंट्रेशन थी कैल्शियम आयंस की. जब ये कैल्शियम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, द कैल्शियम आयंस वुड बाइंड टू स्क्रैम्बलेज एंड एक्टिवेट द एंजाइम स्क्रैम्बलेज. व्हेन द एंजाइम वुड बी एक्टिवेटेड, ये रैंडमली मूव करवाती है आपके पीएस पीई एंड पीसी को. सो हमारे पास इट वुड कॉज द पीएस एंड पीई टू मूव फ्रॉम द इनर लेयर टुवर्ड्स द आउटर लेयर and it would cause the PC to move from the outer layer to the inner layer, जिसकी वजह से जो हमारे पास uneven distribution थी वो एक पॉइंट पर इस तरह से हमारी अरेंजमेंट हो जाएगी इन तीन फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की that in both the layers the distribution of PS, PE and PC would become equal. Therefore, the membrane asymmetry, the uneven distribution of phospholipids would be lost. बेसिकली आयशा, अब जो हमारे पास पेपर 2 आ रहा है ना, उस पेपर 2 में हमारे पास एक क्वेश्चन खाली एक चैप्टर को टेस्ट नहीं करता, वो 2-3 चैप्टर्स को एक साथ टेस्ट कर रहा होता है. So it is testing your it started off with asking you about infectious diseases, जिसमें आपका चैप्टर 11 टेस्ट हुआ है. चैप्टर 11 ही है ना infectious diseases. So आपके पास चैप्टर 11 से क्वेश्चन है infectious diseases से. मैग्निफिकेशन इज फ्रॉम चैप्टर 1
देन हमारे पास अगेन इन्फेक्शियस डिजीज का सवाल था ट्रांसमिशन को लेके। फिर हमारे पास इम्यूनिटी से रिलेटेड सवाल था व्हेन दे टॉक्ड अबाउट एंटीजेंस। सो हमारे पास यहाँ पर इम्यूनिटी आ गया था। फिर हमारे पास क्या कहती हैं, ये पूरा जो पार्ट है दैट इज टेस्टिंग योर चैप्टर 4। तो इसलिए सिंस द पास्ट 1.5 year आई थिंक हर क्वेश्चन में दे आर टेस्टिंग मल्टीपल chapters together. Make sense? This is actually a combination of your understanding of enzymes. कि हमारे पास calcium ions जो हैं they're acting as a cofactor which are activating your enzymes. फिर आपके पास जब वो एंजाइम एक्टिवेट हो रही है तो वो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन करवा रही है, मूवमेंट करवा रही है आपके इन 3 मॉलिक्यूल्स की, जिसकी वजह से जो आपकी मेम्ब्रेन एसिमेट्री है वो चेंज हो रही है. सो एन इंक्रीज, yeah, 2025 onwards, paper have become really technical. Paper two. उससे पहले के paper twos are very easy. So they have become very analytical and very comprehensive as well. पहले क्या होता था, 6 to 7 chapters test हो जाते थे paper two में और बाकी के 4 to 5 chapters test नहीं होते थे. अब they have included all the chapters and they've introduced them in a way that they're not simple recall based questions. Instead, they're very analytical questions. Activates the scramblase enzyme, which causes the movement of PS and PE and the movement of PC from outer layer to inner layer. The random movement could result in an even or equal distribution of all 3 phospholipid molecules in both layers. Therefore, the membrane symmetry will be lost. Next question. Small interfering RNA, siRNA, is a short length of double-stranded RNA, approximately 21 to 25 nucleotides long. Small interfering RNA helps to regulate protein synthesis in cells. Figure 3.1 is an outline summary of one way in which a primary transcript can be processed to produce a molecule of small interfering RNA. The transcript does not code for a sequence of amino acid. So step 1, a primary transcript is synthesized from one strand of DNA. So after transcription, हमारे पास एक primary transcript बनती है. In step 2, the primary transcript loops and a section of the RNA becomes double-stranded. So हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इज बेसिकली लूपिंग इन अ वे कि हमारे पास जैसे हमारा लेसिस का हम लूप बनाते हैं, बिल्कुल वैसे ही हमारे पास क्या कहती हैं जो हमारी प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है वो भी एक लूप बना लेती है इस तरह से, लाइक एक राउंड सा स्ट्रक्चर बन जाता है. The enzyme DROSHA attaches and cleaves यानी कि cuts the RNA to produce a shorter length. तो हमारे पास जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था, जो एक सिंगल स्ट्रैंडेड प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट था, यू कैन सी कि हमारे पास ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है.
और ये हमारे पास एक ही स्ट्रैंड है जिसने इस तरह से एक लूप फॉर्म कर लिया है। एक नॉट नॉट तो खैर नहीं, एक लूप इस तरह से कि वो स्ट्रेट के बजाय एक लूप स्ट्रक्चर बन गया। उस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए का जो लूप बना था उसके एक पॉइंट पर हमारी एक एंजाइम है ड्रोशा व्हिच इज कटिंग द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट टू प्रोड्यूस अ शॉर्ट लेंथ ऑफ द मेन थिंग। In step 4, in the cytoplasm, the enzyme dicer attaches and cleaves the RNA. तो हमारे पास जो RNA बनता है, जो हमारे न्यूक्लियस को लीव कर देता है और साइटोप्लाज्म में होता है, that RNA is also cut by a different enzyme. So जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट आपके न्यूक्लियस में बनती है, उस प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को ड्रोशा कट करती है और हमारे पास क्या कहते हैं, इन द साइटोप्लाज्म जो आरएनए प्रेजेंट होता है उसको आपकी एंजाइम डाइसर कट करती है। Small interfering RNA, which is double-stranded and has two unpaired nucleotides at each 3' end is produced. तो हमारे पास क्या कहते हैं, जो small interfering RNA होता है वो इन दो RNA को जो बीच बीच में से कट किया था दो एंजाइम ने, उनके जो कट स्मॉल फ्रेगमेंट्स थे वो आपस में क्या कहते हैं, एक स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए फॉर्म कर लेते हैं, जहां पर इनके जो 3' एंड्स होते हैं, इन 3' एंड्स पर, दोनों 3' एंड्स पर टू अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होता है। मेक सेंस? एनी क्वेश्चंस? सो ये एंड से क्या होता है, ये जो आपको एंड्स अलग से नजर आ रहे हैं, यहाँ पर कोई भी पेयरिंग नहीं हुई है। क्लियर है? एनी क्वेश्चंस? In step 2, in figure 3.1, the single-stranded primary transcript loops and forms a section where double-stranded RNA is present. Explain how it is possible for the double-stranded RNA to be held together in step 2 and maintained this way in steps 3, 4 and 5. So basically वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो second step है, this particular step, the single-stranded primary transcript loops and forms a section where double-stranded RNA is present. तो यहाँ पर ये जो सेक्शन है, यहाँ पर पेयरिंग हो जाती है एंड ये एक डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सेक्शन की तरह इनएक्ट करता है। Explain how it is possible for the double-stranded section of RNA to be held together in step 2 and maintained this way in steps 3, 4 and 5. Now हमारे पास क्या कहते हैं, ये चीज कहाँ पर हुई, न्यूक्लियस में, ये चीज कहाँ पर हो रही है, ये साइटोप्लाज्म में हो रही है, और हमारा जो ये शेप है ये हेल्ड टुगेदर है। Why is this shape held together in all these steps? So obviously हमारे पास जो एक दूसरे को फेस करने वाले न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, उनके दरमियान क्या होगी, उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी अकॉर्डिंग टू द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। द न्यूक्लियोटाइड्स which are complementary to each other associate via hydrogen bonding. After step 3, the shorter double-stranded RNA produced by the action of Drosha is transported to the cytoplasm where it is cleaved further by dicer to produce double-stranded small interfering RNA. Suggest why two different enzymes, Drosha and dicer, are needed to cut double-stranded RNA into shorter lengths. Now, अगर हमारे पास दो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, तो उन दोनों एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट होगी, उन दोनों की एक्टिव साइट ऑब्वियसली डिफरेंट होगी। तो हमारे पास क्या कहते हैं, Drosha could bind to a certain size or a certain shape of an RNA, और हमारे पास ये कहते हैं dicer would be complementary and can form an enzyme substrate complex with a specific shape or a specific type of RNA strand. So इन दोनों की जो एक्टिव साइट्स हैं वो डिफरेंट होंगी। सो डिफरेंट स्टेजेस या डिफरेंट शेप्स ऑफ द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के साथ ये दो डिफरेंट एंजाइम्स बॉन्ड कर सकती हैं। दूसरा, हमारे पास Drosha is present in the nucleus, dicer is present in the cytoplasm. तो इन दोनों की जो लोकेशंस हैं within the cell they are different. And हमारे पास क्या कहते हैं, डिफरेंट सेल लोकेशंस में जो पीएच है या जो कंडीशंस होंगी वो भी डिफरेंट होंगी।
इस वजह से क्या कहते हैं, हमारे पास दो डिफरेंट एंजाइम्स इस पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व है। ओके, आई शैल एक्सप्लेन अगेन। ये पार्ट समझ नहीं आया या पिछला पार्ट भी समझ नहीं आया? एक सेकेंड, just give me a second, let me write this statement then I'll explain. The question basically is stating कि हमारे पास जो आरएनए है जो प्रोड्यूस होता है एट द एंड ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, उस आरएनए को पहले कट करती है हमारे पास ड्रोशा। ठीक है, सो ड्रोशा इज कटिंग द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जैसे कि उसने स्टेप 2 में हमें बताया था, द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट loops and a section of the RNA becomes double stranded. The enzyme DROSHA attaches and cuts the RNA to produce a shorter length. हमारे पास जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है, प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट एग्जिस्ट करता है न्यूक्लियस में। साइटोप्लाज्म में हमारे पास मेच्योर आरएनए प्रेजेंट होता है। सो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को अगर कोई एंजाइम कट कर रही है तो वो ऑब्वियसली न्यूक्लियस में कट कर रही होगी, सो द ड्रोशा इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। फिर स्टेप 4 में दे आर सेइंग कि जब ये आरएनए साइटोप्लाज्म में आ जाता है, सो इन द साइटोप्लाज्म द एंजाइम डाइसर अटैचेस एंड क्लीव्स द आरएनए। सो हमारे पास इन दोनों एंजाइम की जो लोकेशन है वो डिफरेंट है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है आयशा? That these two enzymes are acting in different locations of the cell. Okay. The question is stating, after step 3, the shorter double-stranded RNA produced by the action of DROSHA is transported to the cytoplasm where it is cleaved further by dicer to produce double-stranded small interfering RNA. Suggest why two different enzymes, DROSHA and dicer, are needed to cut double-stranded RNA into shorter lengths. Basically, इस point पर step number 2 में हमारा डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना। ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए जो है वो दो एंजाइम से कट कर रहे हैं, ड्रोशा एंड डाइसर। एक एंजाइम काफी क्यों नहीं थी, या एक एंजाइम ही खाली क्यों नहीं इन्वॉल्व हमारे पास स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए प्रोड्यूस करने के लिए? हमारे पास अगर दो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, सो उन दोनों एंजाइम्स का ऑब्वियसली एक्टिव साइट डिफरेंट होगी। सो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए का जो स्ट्रक्चर, एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होगा कट होने से पहले, जो स्टेप 2 में हमारे पास प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट डबल स्ट्रैंडेड आरएनए था, उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द स्ट्रक्चर ऑफ द आरएनए व्हिच इज प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। डू यू एग्री विद दिस? क्योंकि साइटोप्लाज्म में ड्रोशा के कट करने के बाद वाला आरएनए प्रेजेंट होगा, और हमें पिक्चर में भी नजर आ रहा है कि ड्रोशा जिस आरएनए पर एक्ट कर रही है वो स्लाइटली लॉन्गर है, और डाइसर जिस आरएनए पर एक्ट कर रहा है वो स्लाइटली शॉर्टर है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर में चेंज नजर आ रहा है आपको स्टेप 3 और स्टेप 4 में? सो ऑब्वियसली हमारे पास स्ट्रक्चर अगर सेम है तो कॉम्प्लीमेंट्री टू द एक्टिव साइट वो किसी एक एंजाइम का तो नहीं होगा, डिफरेंट एंजाइम्स का होगा। सो हमने एक पार्ट में क्या लिखा है, that different active there would be different active sites of DROSHA and dicer, and thus the two enzymes could bind to a different shape of double stranded RNA। ठीक है, तो फिर अगर आप इसमें यहाँ पर इलेबोरेट करना चाहो कि हमारे पास क्या कहते हैं, द ड्रोशा is complementary to the longer or larger double-stranded RNA, whereas dicer is complementary to the smaller, shorter double-stranded RNA to form the enzyme substrate complex। ठीक है, और दूसरी बात ये कि हमारे पास रोशा एंड डाइसर आर प्रेजेंट इन टू डिफरेंट लोकेशंस। सो ऑब्वियसली न्यूक्लियस की जो एनवायरमेंटल कंडीशंस होती हैं, न्यूक्लियस की जो कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होंगी फ्रॉम द कंडीशन इन द साइटोप्लाज्म। सो जो ऑप्टिमम कंडीशंस हैं ड्रोशा एंड डाइसर की, दे आर फाउंड इन डिफरेंट लोकेशंस। ठीक है, okay. From 2018, small interfering RNA has been used as a therapeutic drug to treat a number of diseases. The presence of molecules of small interfering RNA in the cytoplasm can result in the cleavage of messenger RNA molecules coding for a protein involved in the disease. This prevents the synthesis of the protein. So basically हमें information क्या दे रही है कि हमारे पास हम स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए को एज अ थेरेप्यूटिक ड्रग यूज कर सकते हैं टू ट्रीट अ नंबर ऑफ डिजीजेस। हाउ? The presence of molecules of small interfering RNA in the cytoplasm can result in the cleavage. Cleavage का मतलब breaking off, मिड पॉइंट से या किसी पॉइंट से मैसेंजर आरएनए का ब्रेक कर जाना। So can result in the cleavage of messenger RNA molecules coding for a protein involved in the disease.
सो जो भी ऐसा प्रोटीन है जिसकी वजह से एक डिजीज कॉज हो रही है, उस प्रोटीन का प्रोटीन सिंथेसिस को एक स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए स्टॉप कर सकता है by breaking the mRNA responsible for producing a protein which causes disease. Describe the difference between a molecule of mRNA and a molecule of small interfering RNA, such as the small interfering RNA shown in step 5 in figure 3.1. हमारे पास जो ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है और एक मैसेंजर आरएनए जो होता है, क्या फर्क होता है एक मैसेंजर आरएनए के स्ट्रक्चर में और एक स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए में, as shown in the figure? Firstly, mRNA डबल स्ट्रैंड होता है या सिंगल स्ट्रैंड होता है? Okay, Anas, I'll repeat myself. आपको ये small interfering RNA नजर आ रहा है? The one on the in step 5? The question is asking us that how is the structure of mRNA different from the structure of small interfering RNA as shown in step 5? So my question was that एक major difference हमें नजर आ रहा है, small interfering RNA is double stranded. We know that mRNA is a single-stranded molecule. So, a structural difference between mRNA and small interfering RNA would be the fact that mRNA is single-stranded and siRNA is double-stranded. Also, Anas, we would not say RNA is single-stranded because siRNA भी अगर कहते हैं एक RNA molecule है ना, इसमें भी riboxynucleotide है, deoxyribonucleotide तो नहीं है. So you would say mRNA, not just RNA. ठीक है? Okay. फिर हमारे पास क्या कहते हैं, जो हमारा mRNA होता है, is there any hydrogen bonding or complementary base pairing in mRNA? So there is no complementary base pairing in mRNA. We can see that some part of this small interfering RNA is paired and other part is unpaired, whereas mRNA completely unpaired होता है, उसमें कोई भी complementary base pairing नहीं होती. ठीक है? अच्छा, हमें ये भी पता है कि हमारा जो small interfering RNA, it does not code for a sequence of amino acid, whereas we know that the mRNA codes for a sequence of amino acids. ठीक है? So that's about that. तो इनमें से कोई भी डिफरेंस हम लिख सकते हैं. अब हम आ जाते हैं दूसरे पार्ट पर. ये वाला पार्ट प्रीवियसली क्लियर था. ऑब्वियसली मैंने शेयर द पीडीएफ, तो मैं आंसर लिख दूंगी. अभी हम दूसरे पार्ट पे प्रोसीड कर लेते हैं. Figure 3.2 summarizes how mRNA coding for a protein involved in a disease can be targeted and cleaved by a small interfering RNA. Now, हमारे पास क्या कहती हैं? Presence of small interfering RNA activates a protein AGO2. So हमारे पास ये small interfering RNA है, ठीक है? This small interfering RNA basically activates this protein AGO2, which binds siRNA and other proteins to form a complex known as RISC. तो होगा क्या कि हमारे पास जो small interfering RNA है, अगर हम इसको introduce कर देंगे in cells which are producing a protein causing a disease, so the small interfering RNA would activate a protein AGO2 and collectively ये एक complex molecule form करेंगे जिसको क्या बुलाया जाता है? RISC बुलाया जाता है. So, हमारे पास पैसेंजर स्ट्रैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम रिस्क. तो हमारे पास होता क्या है कि हमारे पास जो siRNA है, उस siRNA के दो स्ट्रैंड्स होते हैं. एक सिंगल स्ट्रैंड होता है, सॉरी, एक ये वाला स्ट्रैंड है और एक ये वाला स्ट्रैंड है. एक स्ट्रैंड को हम कहते हैं पैसेंजर स्ट्रैंड विच इज नॉट रिक्वायर्ड, और एक स्ट्रैंड होता है गाइड स्ट्रैंड विच इज रिक्वायर्ड. नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, तो इस कॉम्प्लेक्स से जो नॉट रिक्वायर्ड स्ट्रैंड है, दैट नॉट रिक्वायर्ड स्ट्रैंड इज रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म. ठीक है? नाउ हमारे पास व्हेन दैट इज रिलीज्ड इनटू द साइटोप्लाज्म, जो हमारे पास गाइड आरएनए है, द गाइड आरएनए बेसिकली helps the risk to move towards the mRNA, the actual mRNA which is produced by the nucleus,
एंड हमारे पास जो ये रिस्क है, द रिस्क बाइंड्स विद द mRNA. दिस इज द mRNA. ठीक है, एक मिनट. सो रिस्क यूजेस द गाइड आरएनए. ये आपका गाइड आरएनए है जो कि siRNA से आया था. एंड विद द हेल्प ऑफ द गाइड आरएनए, the risk binds to mRNA for cleavage. Any questions? Anything that you guys want to ask? Unless I am assuming ये की वजह से आपके लिए तो easy होगा क्योंकि CRISPR Cas9 से काफी similar है ये. Aisha and Abdullah, any questions about this description? Anything you guys want me to go over? जो हमारा गाइड आरएनए है, गाइड आरएनए बेसिकली उसमें न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, राइट? हमारे पास गाइड आरएनए क्या होता है? हमारे पास बेसिकली जो न्यूक्लियोटाइड्स होता है वो अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड्स के साथ बेस पेयरिंग करता है. इज दैट करेक्ट आयशा? अगर हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, दिस इज अ डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, अगर हमारे पास एक डबल स्ट्रैंडेड न्यूक्लिक एसिड मौजूद है तो हमारे पास उसकी ऑलरेडी बेस पेयरिंग हुई हुई है. सो एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल क्या किसी और कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से बाइंड कर सकता है या पेयर अप कर सकता है? अच्छा मुझे बताओ, अगर यहाँ पर ए है और यहाँ पर यू है और मैं यहाँ पर एक स्ट्रैंड ला दूं जिसपे यू है, क्या ये वाला एडेनिन इस वाले के साथ बाइंड कर सकेगा अगर वो ऑलरेडी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सके? बिल्कुल नहीं कर सकता, राइट? सो हम क्या करते हैं, हमारे पास जो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है उस डबल स्ट्रैंडेड आरएनए के अगर दोनों स्ट्रैंड्स रहेंगे ना सस्टेन्ड, तो हमारे पास ये जो हमारा आरएनए है ये किसी और आरएनए के साथ बाइंड नहीं कर सकता. हम क्या चाहते हैं, हमारे पास जो एक mRNA न्यूक्लियस प्रोड्यूस कर रहा है, जिस mRNA से एक डिजीज कॉजिंग प्रोटीन फॉर्म होगा, हम बेसिकली चाहते हैं कि हमारा जो ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिस्क है, ये प्रोटीन कॉम्प्लेक्स रिस्क उस mRNA के साथ जाकर बाइंड करे जिस mRNA की हमने प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करना है. यहां तक समझ आई बात? कि रिस्क का बेसिकली पर्पस ये है कि एक ऐसे प्रोटीन के mRNA को कट कर देना जो कि एक प्रॉब्लमैटिक प्रोटीन को कोड कर रहा है. रिस्क का रोल समझ आया आयशा? That the risk has to bind to the mRNA to stop the protein synthesis of that mRNA. हमें एक mRNA की ट्रांसलेशन को रोकना है ना. उसके लिए हमारे पास जो रिस्क है उसने उस mRNA के साथ बाइंड करना है. अगर हमने रिस्क की बाइंडिंग करवानी है mRNA के साथ तो बेसिकली उस mRNA में एक सिंगल सॉरी उस रिस्क में एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होना चाहिए, क्योंकि एक स्ट्रैंड जो है वो दूसरे स्ट्रैंड के साथ क्या कर सकता है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर सकता है. सो एक स्ट्रैंड होगा रिक्वायर्ड, एक स्ट्रैंड होगा नॉट रिक्वायर्ड. नॉट रिक्वायर्ड स्ट्रैंड को हम डिस्कार्ड कर देंगे. जो रिक्वायर्ड स्ट्रैंड होगा उस रिक्वायर्ड स्ट्रैंड में जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उस वो nucleotides would be complementary to a certain section of the mRNA that we are targeting for cleavage. So जो हमारा guide RNA था, guide RNA was complementary to this section of the mRNA. So हमारे पास जैसे ही हमने रिस्क को इंट्रोड्यूस किया हमारे सेल में जिसमें हमें प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना है, the risk because of the help of the guide RNA was able to bind or attach with the mRNA, क्योंकि जो guide RNA strand था, that guide RNA strand had complementary nucleotides to a particular section of the target mRNA. Make sense? So guide RNA basically help करता है risk को in associating or binding with the mRNA which we are targeting. वंस हमारे पास क्या कहते हैं गाइड आरएनए बाइंड कर जाएगा अलोंग विद रिस्क, तो हमारे पास इस mRNA को कट कर देगा, क्लीवेज करवा देगा, तो फिर हमारे पास इस mRNA की ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगी. सो यस यू कैन से द mRNA would not get translated and that is the main purpose कि इस mRNA से जो प्रोटीन है वो डिजीज कॉज कर रहा है, तो हम चाहते नहीं है कि वो प्रोटीन बने. सो अगर वो प्रोटीन नहीं बनवाना तो हमें उसके
प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना पड़ेगा। एंड फॉर दैट हम क्या कर रहे हैं, हम एक गाइड आरएनए के थ्रू उस प्रॉब्लमैटिक एमआरएनए को टारगेट करके उसको कट कर रहे हैं। No, the target mRNA is made by the nucleus and is released into the cytoplasm. Not, हाँ, तो हमारे पास बेसिकली एक नेचुरल प्रोटीन बन रहा है। किसी को लेट्स से एक डिजीज है, एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, जेनेटिक डिजीज है, जो कि हमारे पास एक जीन से जो एमआरएनए बन रहा है, उस एमआरएनए का जो प्रोटीन प्रोडक्ट है, दैट प्रोटीन प्रोडक्ट इज कॉजिंग अ डिजीज। सो हम बेसिकली क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जो एमआरएनए नेचुरली बन रहा है और ट्रांसलेट हो रहा है इनटू अ प्रॉब्लमैटिक प्रोटीन, हम उस एमआरएनए की ट्रांसलेशन रोक दें। क्योंकि अगर एमआरएनए की ट्रांसलेशन को हम रोक देंगे तो हम प्रोटीन सिंथेसिस को रोक देंगे। प्रोटीन सिंथेसिस रुक जाएगा तो डिजीज कॉजिंग प्रोटीन नहीं बनेगा। So this mRNA is present inside the human cell to ensure that the human is getting treated for the disease। ये एक ट्रीटमेंट तरीका एक थेरेप्यूटिक तरीका है कि हम इस रिस्क की टेक्नोलॉजी को यूज करें, इन विच हम जिस mRNA के प्रोटीन सिंथेसिस को, ट्रांसलेशन को रोकना चाहते हैं, उस mRNA से कॉम्प्लीमेंट्री स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए रिस्क के साथ एसोसिएट करें। रिस्क के अंदर जो गाइड आरएनए प्रेजेंट है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए का, वो जाकर बाइंड करेगा हमारे टारगेट एमआरएनए से जो सेल के अंदर प्रेजेंट है, और टारगेट एमआरएनए को कट कर देगा, क्लीव कर देगा, जिसकी वजह से एमआरएनए ब्रेक ऑफ कर जाएगा और उसका ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा और प्रोटीन नहीं बनेगा। मेक सेंस? With reference to figure 3.2, state why the passenger strand needs to be separated and released from the wrist. So हमें passenger strand को release क्यों करना था? We had to release the passenger strand so that हमारा guide RNA can be exposed and bind to the mRNA. ये मैंने explain पहले ही कर दिया था. The passenger strand needs to be separated so that the guide strand can bind to the target mRNA. The aim of small interfering RNA therapy is to prevent or decrease the synthesis of a protein involved in the disease being treated. A target mRNA molecule can be cleaved in a different location by a risk with a different small interfering RNA. Suggest how cleaving mRNA in different locations will have different effects on protein synthesis, and explain how these different effects can result in a लैक ऑफ फंक्शनिंग प्रोटीन। अच्छा जी, हमारे पास डिफरेंट लोकेशन का क्या मतलब होता है कि हमारे पास क्या कहते हैं, डिफरेंट लोकेशंस ऑफ सेल्स। नाउ हमारे पास जो एमआरएनए है, हमारे पास एमआरएनए किससे बाइंड करता है? इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस हमारे पास जो एमआरएनए होता है, व्हाट ऑर्गेनेल डज इट बाइंड टू? इट बाइंड्स टू राइबोसोम, राइट? अच्छा, हमारे पास क्या कहते हैं, they are saying a target mRNA molecule can be cleaved in a different location by risk with a different small interfering RNA। हमारे पास क्या कहते हैं, let's say एक small interfering RNA आपके target mRNA को bind करता है before it attaches to ribosome। So एक तो ये हो सकता है कि हमारे पास before the target mRNA
अटैच्ड टू द राइबोसोम, उससे पहले ही जो आपका स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए है वो आपके टारगेट एमआरएनए से बाइंड करे और उसको क्लीव ऑफ करे। अगर हमारे पास राइबोसोम से बाइंड करने से पहले ही एमआरएनए क्लीव ऑफ हो जाएगा, तो हमारे पास नो ट्रांसलेशन would begin in the first place, which mean no polypeptide is formed. एक तो ये पॉसिबिलिटी है। Does this make sense? पहली पॉसिबिलिटी। ओके ना, आप लोगों ने फर्स्ट पॉसिबिलिटी पढ़ ली। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? दूसरे किस पॉइंट, अगर कोई और मैं स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए यूज करूं इस वाले के बजाय, व्हाट कुड बी अनदर वे कि हमारा स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए हमारी क्या कहती हैं, एक हमारे पास स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए ने एमआरएनए को बाइंड किया बिफोर इट अटैच टू अ राइबोसोम। इट इज आल्सो पॉसिबल दैट हमारे पास ये कहते हैं स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए binds to the target mRNA while it is attached to the ribosome. Now, अगर हमारे पास क्या कहते हैं विद इन द राइबोसोम हमारा एमआरएनए आया है, तो हो सकता है हमारे पास एक पॉलीपेप्टाइड जो थी उसकी ट्रांसलेशन हो रही थी, और हमारे पास क्या कहते हैं ड्यूरिंग दैट ट्रांसलेशन हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उस चेन की कंप्लीट ट्रांसलेशन हो ना पाए। डज दैट मेक सेंस? कि हमारे पास क्या कहते हैं जो एमआरएनए है, दैट एमआरएनए इज अटैच्ड टू द राइबोसोम। लेट्स से ये हमारे पास राइबोसोम है, राइबोसोम से आपका एमआरएनए अटैच्ड है। इस एमआरएनए के साथ आकर क्या चीज अटैच हो गई है? आपका रिस्क आकर अटैच हो गया। ठीक है, द रिस्क हैज अटैच्ड। अब हमारे पास जो पॉलीपेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड लेट्स से हमारे पास ये बनना शुरू हो गया था, द पॉलीपेप्टाइड इज फॉर्मिंग। अब इस पॉइंट पर आकर हमारे पास क्या कहती हैं एमआरएनए इज क्लीव्ड ऑफ। सो क्या हमारे पास बाकी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द एमआरएनए है वुड दैट बी ट्रांसलेटेड? इट वुड नॉट बी ट्रांसलेटेड। तो हमारे पास इन दिस केस क्या होगा, हमारे पास एक शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगी ऑफ द प्रोटीन। एंड शॉर्टर पॉलीपेप्टाइड चेन अगर बनेगी तो हमारे पास क्या कहते हैं जो फंक्शनल प्रोटीन है वो फंक्शनल प्रोटीन नहीं बन पाएगा। सो फंक्शनल प्रोटीन is not formed. Make sense? हमारे पास नॉर्मल प्रोटीन के बजाय एक एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाएगा। क्लियर है? ओके अनस, एंड अनस आपको भी क्लियर है ये बात? Okay, so we'll keep it till here and we'll complete the remaining paper inshallah in tomorrow's class. Thank you so much for joining in. I shall be seeing you guys inshallah tomorrow. Thank you. Yeah, it was a challenging question, definitely. An abnormal protein is called a non-functional protein. Functional protein एक normal protein है जो अपना function carry out कर रहा है. Abnormal protein is that protein which is non-functional, which is not able to carry out its function. ठीक है? Okay, thank you. Okay. So in mammals, the gas exchange systems includes a set of branching airways that carry air to and from the gas exchange surface. When we're talking about gas exchange surface, the gas exchange surface is, okay, you guys tell me, what is the gas exchange surface in our gas exchange system? What is the site at which gas exchange occurs? It's the alveolus. Very good. Alveoli, alveolus.
Air from the external atmosphere passes through different types of airway to reach the gas exchange surface. Name the type of airway of the gas exchange system that branches into airways known as bronchioles. So we have to tell about an airway which branches into bronchioles. So what is the airway which branches into bronchioles? It's the bronchus. Very good. The bronchiole shown in figure 4.1 is not part of the gas exchange surface. Obviously, it's not part of the alveoli. It's not opening into the alveoli. It's not a respiratory bronchiole. That's what they mean. Name one structure in the gas exchange system visible in figure 4.1 where gas exchange is carried out. Even if, okay, so ये जितनी भी आपके पास small air spaces हैं, ये जो सारी आपको नजर आ रही हैं, grape like structures जो हैं, ये सब बेसिकली क्या है, ये आपके एल्बुलाई है, ये आपकी एयर स्पेसेस है. सो ऑल दीज ग्रेप के बंच जैसी स्ट्रक्चर्स आर योर एल्बुलाई. और अगर आपको एल्बुलाई नहीं भी आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, तो हमें पता है कि हमारे पास जो गैस एक्सचेंज कैरी आउट होता है वो कहाँ पर कैरी आउट होता है. इट्स कैरीड आउट इन एल्बुलस. Name the type of cell found in the tissue labeled T in figure 4.1. अच्छा, हमारे पास जो ये आपको डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चर्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये आपके पास बेसिकली क्या कहते हैं, आपके जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये वो हैं. और इनके बीच में जो आपको ये इस तरह की लाइंस नजर आ रही हैं, ये जो लाइंस जो हाईलाइटेड है, इस तरह की जो स्ट्रैटिफाइड या लेयर्ड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, ये स्ट्रैटिफाइड या लेयर्ड स्ट्रक्चर्स जो होती हैं ये बेसिकली आपके स्मूथ मसल्स होते हैं. सो ये जो डार्कली स्टेन्ड सेल्स हैं ये आपके एपिथेलियल सेल्स हैं. सो अगर यहाँ पर लेबलिंग होती सो ये आपके एपिथेलियल सेल्स होते हैं. और आपके जो ये आपको क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं और स्ट्रैटिफाइड रीजन्स जो नजर आ रहे हैं ये आपके स्मूथ मसल्स हैं. सो दिस इज बेसिकली योर स्मूथ मसल्स. तो ये आपके स्मूथ मसल्स हैं और ये आपके एपिथेलियल सेल्स हैं. So structure T is your smooth muscle. State the features that help to identify the type of airway shown in figure 4.1 as a bronchiole and not the other types of airway present in the gas exchange system. Looking at this structure, why are we able to identify it as a bronchiole and not as a trachea or as a bronchus? What features are present in this figure that are characteristic of a bronchiole? So there is no cartilage. So there are no cartilage present. फिर हमारे पास किसी ने बोला कि हमारे पास इसका wrinkled endothelium नहीं, इसका हम wavy या फिर curvy या convoluted and क्या कहती हैं epithelium बुलाते हैं. So this is known as a curvy, wrinkled या जो ideal terminology है यूज करने की वो होती है convoluted epithelium. सो एक हमारे पास ये आइडेंटिफिकेशन है, दूसरी हमारे पास ये है that we have no cartilage. Third would be हमारे पास compared to a cartilage or a bronchus जो हमारे पास wall thickness है. Are these walls thicker or are these walls thinner compared to trachea or bronchus? These are thinner walls. और हमें पता है कि trachea से जैसे जैसे हम towards the alveolus जाते हैं हमारे पास क्या कहते हैं thinner and narrower होती जाती हैं हमारी gas exchange surfaces. So we have thinner walls. ठीक है. फिर हमारे पास क्या कहते हैं, आपको यहाँ पर गॉबलेट सेल्स भी दिखाई नहीं दे रहे होंगे इतने ज्यादा. सो हमारे पास क्या कहती हैं गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट नहीं होते इन आवर bronchioles. So absence of goblet cells. No, or you can say few goblet cells. क्योंकि जो goblet cells होते हैं, goblet cells का जो structure होता है वो इस तरह का होता है. और इस तरह के स्ट्रक्चर्स आपको एपिथेलियम में नजर नहीं आ रहे. ज्यादातर जो सेल्स हैं वो क्या कहती हैं आपके कॉलमनर सेल्स हैं. यहाँ पे आपको गॉबलेट सेल्स नजर नहीं आ रहे. सब आपके पास इस तरह के कॉलमनर सेल्स हैं.
सो कहीं पर भी हमें क्या कहते हैं, कोई बहुत ज्यादा गॉबलेट सेल्स नजर नहीं आ रहे जो विच लुक लाइक अ वाइन गॉबलेट। सो इन चार में से कोई भी तीन आप क्या कहते हैं फीचर्स लिखोगे टू टेल व्हाई द टिश्यू शोन इन figure 4.1 is a bronchiole and not any other airway from the gas exchange system. So I'm going to copy these pointers below. बिकॉज हमारे पास जो आपकी सारी माइक्रोग्राफ्स है ना, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंक्यूल हो गया, ब्रोंगस, ये माइक्रोग्राफ आपका एग्जामिनर एक्सपेक्ट करता है आपको पता होने चाहिए। सो यू नीड टू नो अबाउट द माइक्रोग्राफ्स ऑफ ट्रैकिया, ब्रोंकस एंड ब्रोंक्यूल, क्योंकि आपको पता होगा तभी तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। सो एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आपको पता होने चाहिए एंड ऑब्वियसली कंपैरिजन के लिए भी आपको पता होने चाहिए। सो इवन इन द नोट्स आई हैव एडेड द माइक्रोग्राफ्स ऑफ ऑल दीज स्ट्रक्चर्स सो दैट आप क्या कहते हैं कंपेयर कर सको। ठीक है। सो लाइक आई इवन शो आपके पास आपका जो फोल्डर है एएस बायो। सो बेसिकली दिस इज हाउ अ ट्रैकिया लुक लाइक। सो यहां से लेकर यहां तक ये आपकी ट्रैकियल थिकनेस है। देन आपके पास क्या कहते हैं, अगर हम उसको कंपेयर करें विद अ ब्रोंक्यूल, सो ऑब्वियसली आपके पास जो ब्रोंक्यूल की वो है वॉल्स हैं, दे आर थिनर देन द ट्रैकिया। सो दीज आर बेसिकली when we're talking about मैग्निफिकेशन बिल्कुल डिफरेंट हो सकती है, बट आप मुझे बताओ कि जो आपके पास जो कार्टिलेज है, कार्टिलेज की जो थिकनेस है, जो कार्टिलेज स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी वो ज्यादा ही होगी ना, बिकॉज ट्रैकिया में आपके पास एक सी शेप्ड कार्टिलेज है। सो ऑब्वियसली द प्रेजेंस ऑफ द कार्टिलेज वुड बी मेकिंग द ओवरऑल लेयरिंग ऑफ द ट्रैकिया थिकर कंपेयर टू द ब्रोंकिस जिसमें कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं है। सो रिगार्डलेस ऑफ द मैग्निफिकेशन आपकी जो वॉल थिकनेस है वो ट्रैकिया की ज्यादा होगी और क्या कहते हैं ब्रोंक्यूल की कम होगी। Blood is pumped to the lungs in the pulmonary circulation. The lung also receive a supply of blood from the systemic circulation. Systemic circulation में क्या कहते हैं, अयोटा से लंग्स को ब्लड आ रहा है और पल्मोनरी सर्कुलेशन में आपके पास पल्मोनरी वेन से लंग्स को ब्लड आ रहा है। So the blood is pumped to the lungs in the pulmonary circulation. The lungs also receive a supply of blood from the systemic circulation. Explain why the pulmonary circulation and the systemic circulation need to supply blood to the lungs. Now हमारे पास क्या कहती हैं, दिस इज अ क्वेश्चन एंड इससे सिमिलर क्वेश्चन भी आई थिंक सो एक पेपर में आया हुआ है, जिसमें हमारे पास क्या कहते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि अब तक यही सुना होता है कि हमारे पास जो लंग्स है वो रिसीव कर रही होती हैं ब्लड थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी सर्कुलेशन कनेक्ट करती है लंग्स को हार्ट से। सो हाउ कम द lungs are receiving blood from the systemic circulation? Now हमारे पास ये कहते हैं जो pulmonary artery है वो blood को कहाँ लेकर जा रही होती है? Where does the blood from the pulmonary artery go? Lungs से किस part में? What part of the lung receives the deoxygenated blood from the heart? Trachea, bronchus, bronchioles, alveoli. कहाँ पर हमारे पास exchange of gases होता है? Alveoli. So when we talk about lungs में ये सारी चीजें आ जाती हैं, खाली alveoli इंक्लूडेड नहीं होता। लंग्स में आपके पास ट्रैकिया भी है, ब्रोंकस भी है, ब्रोंक्यूल्स भी है। सो क्या इनको ऑक्सीडेटेड ब्लड नहीं चाहिए होगा अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, रेस्पिरेशन के लिए? या जो हमारे पास एल्वेलाई के आपके सेल्स हैं, वुडंट दे नीड ऑक्सीनेटेड ब्लड? तो हमारे पास क्या कहती हैं, जो सिस्टेमिक सर्कुलेशन है इट इज प्रोवाइडिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड, whereas the pulmonary circulation is providing deoxygenated blood. Pulmonary circulation क्यों important है? Pulmonary circulation is important so that the exchange of gases can occur through the alveoli. The carbon dioxide can be excreted and the oxygen can be taken in by the blood. On the other hand, the systemic circulation brings oxygen and glucose, allowing for the metabolic activities and the aerobic respiration to take place in the lung cells. So,
Pulmonary circulation brings deoxygenated blood for the exchange of gases to occur in alveoli. You can give the description that oxygen is taken in and carbon dioxide is excreted out. Oxygen is taken in and carbon dioxide is given out by the blood. The systemic circulation brings oxygenated blood, which the lungs use for aerobic respiration. Next question. Veins transport blood towards the heart. The structure of a vein is adapted to its function. The inner layer of a vein is the tunica intima, composed of a single layer of endothelial cells that form a protective barrier. When the tunica intima of a blood vessel is damaged, endothelial cells can carry out mitosis to allow tissue repair to occur. The spindle that is formed during the mitosis is composed of spindle fibers. Name the cell structures that are organized to form spindle fibers during mitosis. What structures make up the spindle fiber? The microtubules. Very good. Describe the telophase stage of mitosis. So in telophase, the nucleolus appears, the nuclear envelope reforms, the chromosomes decondense. So इनमें से कोई भी दो चीजें हमने लिखनी है. Nucleolus he appears, nuclear envelope reforms. Explain how the structure of a vein is related to its function. You do not need to include details of the structure of the tunica intima and its function. ओके पहले हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ वेन. वेन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? व्हाट आर द थिंग्स प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ द वेन? लार्ज ल्यूमेन होता है, ठीक है. ओके वेयर आर द स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट? आयशा. What is the location of smooth muscles and elastic fibers? नो एज इन ट्यूनिका इंटिमा में होते हैं, ट्यूनिका मीडिया में होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना में होते हैं. If they're in tunica media, very good. And what else is present? Something very important, which is a characteristic feature of veins. Valves present होते हैं. Very good. So हमारे पास 5 structural features of vein आ गए. Tell me, how do these features help the vein in carrying out its function? Valves क्या करते हैं? Valves prevent the backflow of blood. So that is our first point. Okay. Now, smooth muscles and elastic fibers. What would be the role of smooth muscles and elastic fibers?
हमारे पास जो स्मूथ मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते? ओके, सो स्मूथ मसल्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। Contraction relaxation of the smooth muscles helps in the movement of the blood, क्योंकि हमारे पास जो वेन्स होती हैं उनमें जो ब्लड होता है वो हाई प्रेशर पर तो नहीं होता कि प्रेशर की वजह से ब्लड आगे मूव करे। सो जो आपके स्मूथ मसल्स होते हैं, the smooth muscles contract and relax involuntarily, and when the smooth muscles are contracting and relaxing, उनकी contraction relaxation की वजह से क्या हो रहा होगा, हमारे पास जो ल्यूमेन होगा वो जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा हमारे मसल्स, हमारे पास जो ल्यूमेन डायमीटर होगा वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। और जो हमारे पास जैसे ही मसल्स रिलैक्स करेंगे ल्यूमेन डायमीटर वाइडन होगा। इस कॉन्स्ट्रिक्शन एंड वाइडनिंग की वजह से आपके पास क्या कहते हैं, जो ब्लड है विद इन द वेन्स वो आगे की तरफ मूव होता रहता है। सो स्मूथ मसल्स के लिए हम लिख सकते हैं स्मूथ मसल्स प्रोवाइड सपोर्ट, और वी कैन आल्सो से द स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स रिजल्टिंग इन द चेंजेस इन द ल्यूमेन ऑफ द वेन, which in turn helps in the blood to move ahead. Does that make sense? So smooth muscles provide support, and their contraction and relaxation helps in the movement of blood, or you can say facilitates the movement of blood. इलास्टिन, आपके जो इलास्टिक फाइबर्स होते हैं, जो भी आपके पास चेंजेस इन ल्यूमेन डायमीटर आ रहे हैं, वो इन चेंजेस इन ल्यूमेन डायमीटर को अकोमोडेट करता है। तो आप वो भी बात कर सकते हो। फिर लार्ज ल्यूमेन क्या होता है? लार्ज ल्यूमेन क्या बेसिकली करेगा? द लार्ज ल्यूमेन वुड बेसिकली allow more volumes or large volumes of blood to move। तो हमारे पास क्या कहते हैं, हमारे पास जो लार्ज ल्यूमेन होता है, इट अलाउज बल्क मूवमेंट और इट अलाउज लार्ज वॉल्यूम और लार्ज क्वांटिटी ऑफ ब्लड to be present within the vein. Okay. Any questions? Can we proceed? Okay. State and explain why the same leaf of a plant can be described as a source or as a sink depending on the stage of maturity age of the leaf. This is something that I have gone over multiple times while teaching transporting plants. How come a leaf be both a source and a sink? Or when is the leaf both a source and a sink? So you should tell according to the level of maturity of the leaf कि वो कब act करता है as a sink and कब वो act करता है. Okay. So a leaf is a sink when it is growing or when it is immature or when it is not able to carry out photosynthesis. That is when it acts as a as a sink. And हमारे पास क्या कहते हैं? Leaf acts as a source when it becomes mature and has the ability to carry out photosynthesis. That's when it acts as a source. Leaf is a sink when it is growing and not mature enough to carry out photosynthesis. It is a source when it is mature enough to carry out photosynthesis. Figure 6.1 lists 7 types of plant cell found in leaves: epidermal cells, guard cells, palisade, mesophyll cell, phloem, sieve tube elements, parenchyma cells, spongy mesophyll cell, and xylem vessel element.
Match the correct type of cell from the list in figure 6.1 with with each statement A to E. Each cell type can be used once, more than once, or not at all. The first match has been done for you. This is a thick-walled cell that provides support. So sclerenchyma cell में जो आपके पास basically lignin होता है, sorry, जो आपके पास xylem होता है और xylem के अंदर जो lignin present होता है, that basically helps in the provision of support and gives strength to xylem. The cell is one of a pair of cells that form a stoma. What cell exists as a pair? B का आंसर होगा 2, which is the guard cell. Very good. This cell receives water to build up hydrostatic pressure for mass flow. हमारे पास क्या कहते हैं, वाटर अगर आ रहा है तो जाइलम से वाटर एंटर कर रहा है इस सेल के अंदर, और एंट्री ऑफ वाटर की वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है. That develops in what? That develops in the foam sieve tube element. Foam sieve tube element में जब हमारे पास सुक्रोज डिफ्यूज होकर आती है, so the foam sap becomes more concentrated and the water potential reduces. Therefore, xylem से water enter करता है via osmosis, and that results in development of hydrostatic pressure at the top of the flow. So it would be 4. This cell needs water for photosynthesis and is columnar shaped. 3. Palisade mesophyll cell. Very good. This cell secretes a waxy substance to help prevent water loss. So हमारे पास एपिडर्मिस के ऊपर वैक्सी सब्सटेंस होता है क्यूटिकल. So हमारे पास एपिडर्मल सेल is responsible for the secretion of the waxy cuticle. And with that, we are done with this paper.